Good morning, students. Welcome to your English online lecture. Myself, Miss Pooja, and today you are going to learn subject English of Standard First. So, students, open your English Bal Bharati textbook and carry a pencil with you. Okay, students, open your English Bal Bharati textbook, pencil, and also open your Navjeevan term book, your combined book number 1. Today we are going to learn a new chapter, a new lesson. Okay, students? Very good. So let us begin with our today's lesson. Students, this is your English Bal Bharati textbook, the image of your textbook. बच्चों, ये है आपकी इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक. जिन बच्चों ने इस इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक को परचेस नहीं किया है, वो बच्चे इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक आपको बाहर शॉप में से ख़रीदनी होगी. इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक आपको स्कूल में अवेलेबल नहीं है. आपको ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है, आपको ये टेक्स्ट बुक बाहर से ख़रीदनी होगी. ओके बच्चों, यस. और जिन बच्चों के पास अभी नहीं है, वो आपको अभी प्रेयर के पहले महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का लिंक आया होगा. आप प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन से टेक्स्ट बुक आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस बिगिन विथ अ न्यू लेसन फ्रॉम आवर यूनिट 1. तो बच्चों, आज हम इंग्लिश बाल भारती में एक न्यू लेसन पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 में से. ओके students, let us have a look to the inside the book, the index page, before starting our lesson. तो बच्चों, लेसन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार हमारे पोएम्स और चैप्टर्स एक बार देख लेते हैं जो हमने कंप्लीट किया है. तो बच्चों, आप देख सकते हो हमारे टोटल 8 यूनिट है. हाउ मच यूनिट आर देयर? देयर आर टोटल 8 यूनिट्स. Okay students, yes, now you can see that inside the book unit 1 we have completed our poem A Happy Song, poem number 1, poem number 2 Nature, lesson number 3 Action Time, lesson number 4 Know Each Other, lesson number 5 Let's Learn Alphabets, lesson number 6 Make Words, lesson number 7 Letters on a tab and computer keyboard. Okay, lesson number 8 Sounds in the middle of words. Today we are going to study lesson number 9 Soham's Ball. बच्चों, तो हमने 8 हमारे लेसन्स कंप्लीट किए हैं. जिन बच्चों ने अभी अभी ऑनलाइन क्लास या ऑनलाइन लेक्चर्स देखना स्टार्ट किया है, बहुत बच्चों ने अगर प्रीवियस लेक्चर्स जो स्टार्टिंग से हमारे फर्स्ट लेसन से मिस किया है, तो बच्चों आप डिवाइन एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो. वहाँ से आपको 15 जून से आपको सारे इंग्लिश के लेक्चर्स मिलेंगे. आप उसे ओपन करके बच्चों को दिखा सकते हो. ओके, यस. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लेसन नंबर 9 सोहम्स बॉल. Students, open your textbook page number 10, 1010. Okay, all of you open your textbook page number 1010. Lesson number 9 Soham's Ball. The name of the lesson is Soham's Ball, SOHAMS, Soham's BALL ball. Soham is the name of a boy in the lesson, and ball everyone know. Yes or no? The ball which we play. Okay? तो लेसन्स नेम इज सोहम्स बॉल. बच्चों, हमारा लेसन नंबर 9 है सोहम्स बॉल. सोहम जो है वो बॉय का नाम है इस लेसन में, और बॉल हम सभी बच्चे जानते हैं. बॉल के साथ आप सभी खेलते हो. सो स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन, लेट मी
tell you about the lesson in very short. तो बच्चों, लेसन स्टार्ट करने से पहले हम लेसन में एक समराइज करेंगे, एक शॉर्ट में लेसन को समझेंगे कि इस लेसन की स्टोरी में क्या है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, और फिर हम हमारा रीडिंग और एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे. ओके बच्चों, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? द फर्स्ट थिंग, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? टेल मी स्टूडेंट्स. You are going to fold your hands. Okay, you are going to fold your hands, sit quietly and listen to the teacher, what teacher is telling you. Okay, what teacher is explaining, and you have to watch the entire lecture till the end, so that the story of the lesson you will be understanding. बच्चों, students, let us see the lesson summary. We are learning subject English of standard first, and myself is Miss Pooja, your teacher, English teacher. Let us begin with our unit 1, lesson number 9, Soham's ball. Now students, in this lesson, Soham, here Soham is the name of the boy, and one more boy is there in the lesson, Sam. Okay, and one character is there, Mr. Mane. Total there are 3 characters in this lesson, in this story. बच्चों, ये जो लेसन है सोहम्स बॉल, इसमें 3 कैरेक्टर है. Now what is character students? बच्चों, कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर्स मतलब स्टोरी में कौन कौन से लोग हैं, किनके बारे में स्टोरी में लिखा है, किसके बारे में स्टोरी में बताया है, तो उसे कहते हैं कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स इन द लेसन आर सोहम, SOHAM, सोहम इज अ बॉय, सैम इज अनदर बॉय, SAM, सैम, एंड अ मैन इज देयर हुज नेम इज मिस्टर माने, MR, मिस्टर MANE, माने. तो बच्चों, हमारे लेसन में, आज के हमारे लेसन के स्टोरी में 3 जन है. सोहम बॉय है, सैम भी बॉय है. सोहम और सैम दोनों फ्रेंड्स रहते हैं. और ये स्टोरी में और एक है कैरेक्टर, और एक कैरेक्टर है जिसका नाम है मिस्टर माने. ओके, तो अब बच्चों, ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. आप सभी को ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी. ओके, तो आपको अच्छी तरीके से सुनना है, ध्यान से सुनना है. सो स्टूडेंट्स, फोल्ड योर हैंड्स एंड लिसन टू द वीडियो. लुक, क्वेश्चन नंबर 1, लुक, लिसन एंड रीड अलाउड विथ मी. ओके, first of all I am going to explain you, then you are going to repeat and read along with me. तो बच्चों, मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद आप और मैं, हम दोनों मिलकर रीड करेंगे. मैं आपको रीड करूँगी, बताऊँगी कि कैसे रीड करना है, और आप मेरे साथ ही रीड करोगे. ओके बच्चों, लेट अस बिगिन. सोहम एंड सैम आर प्लेइंग फुटबॉल. बच्चों, यहाँ पर 2 बॉय है, सोहम और सैम. कितने जन है इस स्टोरी में? 2 बॉय के बारे में बताया है. आप इस पिक्चर में देख सकते हो. फर्स्ट पिक्चर है सोहम एंड सैम. यू कैन सी दिस पिक्चर. I am showing you this picture more closer so that everyone can see this picture of a boy playing Soham and Sam. What are they playing? Football. Black color, what is this? Ball, football. Okay, we play, we kick with the leg. Okay, Soham and Sam are playing football. बच्चों, सोहम और सैम क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं. सभी बच्चे जानते हैं फुटबॉल को हम पैर से खेलते हैं. यस, तो 2 जन, सोहम और सैम, दोनों दोस्त हैं और फुटबॉल खेल रहे हैं. सैम किक्स द बॉल. इट गोज इनटू
मिस्टर मानेस गार्डन। ओके, अब सैम जो है वो क्या करता है, बॉल किक करता है। सैम, ओके, सैम क्या करता है, बॉल को किक करता है। किक का मतलब पैर से मारता है। और वो बॉल कहाँ जाता है बच्चों, मिस्टर माने के गार्डन में। मैंने आपको बताया था कि मिस्टर माने एक मैन है, एक स्टोरी में एक मैन है, उनका नाम है मिस्टर माने। तो दोनों बच्चे खेल रहे हैं, सोहम और सैम। और सैम जोर से बॉल को क्या करता है, किक करता है, लात मारता है, तो वो बॉल जाता है मिस्टर माने के गार्डन में। ओके, अब हम देखेंगे सेकेंड पैराग्राफ। सैम आस्क फॉर द बॉल। एक्सक्यूज मी, मे आई हैव द बॉल प्लीज़। अब जो येलो टी शर्ट में है बच्चों, बॉय सैम है, वो जाता है और बॉल के लिए पूछता है मिस्टर माने से। वो क्या कहता है मिस्टर माने को, एक्सक्यूज मी। कौन सा वर्ड यूज़ करता है वो, एक्सक्यूज मी। अच्छे से बोलता है, एक्सक्यूज मी, क्या मुझे मेरी बॉल मिल सकती है प्लीज़। वो रिक्वेस्ट करता है, कहता है प्लीज़। श्योर, हियर इट इज़। मिस्टर माने बोलते हैं, क्यों नहीं, ये लो आपकी बॉल। आफ्टर सम टाइम अगेन द बॉल गोज़ इनटू मिस्टर मानेस गार्डन। नाउ सोहम आस्क फॉर द बॉल। अब दोनों बच्चों को बॉल मिलती है, वापस दोनों बच्चे बॉल के साथ खेलने लगते हैं और वापस बॉल जाती है मिस्टर माने के गार्डन में। तो बच्चों अब देखो, वापस सेकेंड टाइम बॉल वापस जा रही है मिस्टर माने के गार्डन में। आप लोग भी कितने बार खेलते हो और बॉल किसी के दरवाजे पे लगती है तो कैसे होता है, आप जल्दी से भाग जाते हो, यस और नो, कि आपको डांट सुनने मिलेगा, यस और नो स्टूडेंट्स, यस, तो आप डर जाते हो। उसी तरीके से अब सैम और सोहम दोनों बॉल के साथ खेल रहे हैं और वापस बॉल जाती है मिस्टर माने के गार्डन में। नाउ सोहम आस्क फॉर द बॉल। अब बॉल लेने के लिए सोहम जाता है। सोहम कौन है बच्चों, ग्रीन कलर के टी शर्ट में जो बॉय है वो है सोहम। सोहम जाकर क्या बोलता है, गिव मी द बॉल। सोहम जाकर डायरेक्ट बोलता है कि मुझे मेरी बॉल दे दो, जोर से बोलता है, गिव मी द बॉल। नो आई वोंट, सेड मिस्टर माने। अब मिस्टर माने बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। ओके, तो आप ज़रा सोचो बच्चों कि जब सैम गया था बॉल लेने के लिए मिस्टर माने के पास, तो मिस्टर माने ने तो बॉल सैम को अच्छी तरीके से दे दिया, बिना डांटे, और अच्छी तरीके से एक ही बार में बॉल दे दिया। अब सोहम जब बॉल ले मांगने गया था तो मिस्टर माने ने उसे बॉल क्यों नहीं दिया बच्चों, ज़रा सोचो कि मिस्टर माने सोहम को बॉल क्यों नहीं देते हैं। सैम को तो उन्होंने बॉल दे दिया, बॉल गई थी गार्डन में, तो मिस्टर माने को क्यों नहीं दिया। कैन एनीवन गेस द आंसर, you can guess the answer and you can give the answer in the comment section. I am going to read all the students answer, those who are giving in the comment section, okay students, so that I will come to know that these students are active in my lecture. बच्चों आप लोग लेक्चर देखते ही कमेंट कर सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, आप बता सकते हो। क्वेश्चन है, व्हाई डज मिस्टर माने से नो। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि मिस्टर माने बॉल के लिए सोहम को ना क्यों बोलते हैं। तो बच्चों आप सोच के अपना आंसर कमेंट में लिख सकते हो। जो बच्चे आंसर को कमेंट देंगे मैं ज़रूर पढ़ूंगी और और उन्हें रिप्लाई भी दूंगी। बच्चों इससे मुझे ये पता चलेगा कि ये स्टूडेंट एक्टिव है मेरे लेक्चर में। ओके बच्चों, यस, तो आप ज़रा सोचो, व्हाई डज मिस्टर माने सो नो, मिस्टर माने नहीं क्यों बोलते हैं। लेट अस सी द थर्ड पैराग्राफ, व्हाई डज मिस्टर माने से नो। अब हम थर्ड पैराग्राफ में देखेंगे, आपको आपका आंसर मिलने वाला है कि मिस्टर माने सोहम को बॉल क्यों नहीं देते हैं। हाउ इज सोहम फीलिंग। बच्चों अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है, सोहम को कैसा लग रहा है। ओके, अब हम सोहम की बात तो कर रहे हैं स्टोरी में। अब आप अगर आपका बॉल
अगर आप खेलते खेलते आपका बॉल गार्डन में किसी दूसरे के बिल्डिंग में या दूसरे के घर के इधर चला जाता है और जब आप बॉल मांगने जाते हो वो आपको बॉल नहीं देता है, कहता है कि जाओ, आपको आपकी बॉल नहीं मिलेगी, यू विल नॉट गेट योर बॉल, तो आपको कैसा लगता है बच्चों? हाउ डू यू फील? आप बता सकते हो कि सोहम को कैसा लग रहा है? हाउ इज सोहम फीलिंग? यस, सोहम को गुस्सा आ रहा है। सोहम इज एंग्री। सोहम इज नॉट फीलिंग गुड। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और वो बहुत ही गुस्से में है। हाउ इज मिस्टर माने फीलिंग? मिस्टर माने को कैसा लगता होगा? मिस्टर माने को भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मिस्टर माने को भी गुस्सा आ रहा है। अब क्यों मिस्टर माने को गुस्सा आ रहा है? मिस्टर माने ने तो बॉल ले रखी है और बॉल वापस दे नहीं रहे हैं। कैन यू ऑल टेल मी व्हाई मिस्टर माने इज फीलिंग, हाउ ही इज फीलिंग? ओके, he is feeling angry, and why he is feeling angry? The ball is with Mr. Mane and he is not returning to Soham. Let us see in the third paragraph. Third paragraph, Soham tries again. Uncle, may I have the ball please? How does Mr. Mane feel now? अब सोहम वापस से ट्राई करता है। वो अब इस बार कोशिश कर रहा है कि वापस मांगता हूँ बॉल, लेकिन इस बार वो अलग टोन में बोल रहा है। कैसे बोला सोहम ने इस बार? अंकल, क्या मुझे मेरी बॉल मिल सकती है प्लीज़? वो रिक्वेस्ट कर रहा है। हाउ डज मिस्टर माने फील नाउ? क्या आप बता सकते हो कि अब मिस्टर माने को कैसा लग रहा होगा? यस, अब मिस्टर माने बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि बच्चों, आपको पता है जब आप अगर किसी को प्लीज़ कहते हो या अच्छे से पोलाइटली बात करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि सामने वाला का गुस्सा कम हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट किसी से कोई चीज़ मांगते हो, गुस्से में मांगते हो, तो क्या होता है बच्चों? वो नहीं देते। इसमें भी ऐसे ही हुआ। सैम बॉल मांगने गया था और उसने स्टार्टिंग में बोला था एक्सक्यूज़ मी, मुझे मेरी बॉल मिल सकती है, तो उसे उसकी बॉल मिल गई। वही चीज़ सोहम गया था मांगने। सोहम डायरेक्ट जाके बोला गिव मी द बॉल। ना सोहम इज़ यूजिंग गिव मी द बॉल, सो मिस्टर माने became angry. Now he is requesting that uncle, may I have the ball please? Now he is requesting that may I have my ball please? How does Mr. Mane feel now? Mr. Mane is happy now. You can see the face of Mr. Mane. Yes. Last word, last stanza. Thank you, said Soham. सोहम ने मिस्टर माने को कहा थैंक यू क्योंकि लास्ट में मिस्टर माने ने उनकी बॉल दे दी। वाई डिड ही गिव द बॉल बैक? बच्चों, उसको सोहम को कैसे बॉल मिलती है? यस, तो इस स्टोरी से हमें पता चला कि सोहम ने स्टार्टिंग में जब बॉल मांगी थी तो बहुत रूडली बात किया था, कि गुस्से में बात किया था कि मुझे मेरी बॉल दे दो ऐसे, और लास्ट में जब सेकेंड टाइम वो बॉल मांगा तो उसने रिक्वेस्ट किया कि अंकल, क्या मुझे मेरी बॉल मिल सकती है प्लीज़? तो अब मिस्टर माने खुश हो गए और उसे उसकी बॉल दे देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फ्रॉम दिस लेसन यू गॉट अ मॉरल ऑल्सो। तो बच्चों, आपको यहाँ पे मॉरल भी सीखने मिला कि हमें हमेशा अच्छे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। वी ऑलवेज हैव टू यूज़ पोलाइट वर्ड्स। We have to use thank you, sorry, please, welcome. We have to use all these words, okay? Yes, and we should speak softly and politely with our elders, our parents, our teachers, okay? तो बच्चों, हमेशा हमसे जो बड़े होते हैं, एल्डर होते हैं, भाई बहन, टीचर, आपके पेरेंट्स, आपको कैसे बात करना है? सॉफ्टली बात करना है, ओके? पोलाइटली बात करना है, अच्छे से बात करना है, आपको कभी गुस्सा नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द मॉरल। ओके, आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस लेसन नंबर 9, सोहम्स बॉल। तो बच्चों, सभी बच्चों को समझ में आया स्टोरी? वेरी गुड।
ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द रीडिंग। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बच्चों आपका इंग्लिश रीडिंग। सीनियर केजी तक आपको रीडिंग से वर्ड्स दिए थे 2 लेटर 3 लेटर, यहाँ पे आपको वर्ड्स के साथ सेंटेंस दिया है जो कि आपको रीडिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट से आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। योर रीडिंग शुड बी वेरी वेरी good as you'll have to know that how to read. Reading is very compulsory. Parents see that your students are reading the textbook, make them the habit of reading the textbook. Okay, tell them to read the words, small words to read and write and practice the words. And when they read the question answer, when they read the poem, tell them to read it loudly. Okay, so let us begin. Soham and Sam are playing football. आपको मेरे साथ ही पढ़ना है, पेंसिल रखनी है सेंटेंस पे। टेक्स्ट बुक में आपके सैम किक्स द बॉल, इट गोज इनटू मिस्टर मानेस गार्डन। सेकेंड पैराग्राफ, सैम आस्क्स फॉर द बॉल, excuse me, may I have the ball please? Sure, here it is. When there is a full stop you have to stop there. बच्चों जहाँ फुल स्टॉप रहेगा, डॉट रहेगा ना सेंटेंस के लास्ट में, आपको वहाँ पे आपको सेकंड के लिए रुकना है, उसके बाद आपको रीडिंग स्टार्ट करनी है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। यू हैव टू सी दैट in the end of the sentence there is a full stop. You have to wait for a second and then you all have to start your reading. After some time again the ball goes into Mr. Mane's garden. Now Soham asks for the ball. Give me the ball. No, I won't, said Mr. Mane. Why does Mr. Mane say no? How is Soham feeling? How is Mr. Mane feeling? Soham tries again. Uncle, may I have the ball please? How does Mr. Mane feel now? Thank you, said Soham. Okay, so here we have completed our page number 10. Open your page number 11 of your textbook. बच्चों और पेरेंट्स यहाँ पर दोनों को एक छोटा सा शॉर्ट नोटिस है। ना स्टूडेंट्स, एज you all know that it is a English lecture, but here for you all I am explaining in Hindi. Now little bit you all have to start understanding that what teacher is trying to speak. बच्चों आपको बोलना नहीं लेकिन कोशिश करना है सुनने की, कि आपको इंग्लिश में टीचर जब बोल रही है तो मैं वर्ड्स को सुनूं कि हमारी टीचर क्या बोल रही है। इससे आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा और आप धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, अगर आप मुझे बोलोगे कि टीचर हिंदी में ही पूरा एक्सप्लेन करो, सो स्टूडेंट्स हाउ आर यू गोइंग टू लर्न इंग्लिश? हाउ आर you going to understand the words? So students, you all have to try that what the teacher is telling. We have to listen first. Listening is very very important. Once you start listening carefully, you will be able to start speaking slowly. Okay, and this is your first standard. As you know, English is your main subject. Okay, open your page number 11.